Do I need to go to college? Do I need a course to be done? What course I should choose? What would be right for me? And what will it give me a job opportunity in future? Hey, what's up, everybody? My name is Spandan Mandal, and today I am gonna talk about top three things you should do as if you are entering the college. हे गाइस, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम स्पंदन है और जैसे कि आप मेरे पिछले एपिसोड में देखिए मैं बताया है कि मैंने ये पॉडकास्ट क्यों शुरू करा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सीक टू हेल्प पीपल, राइट? सो आप अगर एक स्टूडेंट हैं, राइट? अगर आपका 12th क्लास अभी ख़त्म हुआ है, अभी फिनिश हुआ है, आप कॉलेज जॉइन करने वाले हैं। आपको नहीं पता कि आपको कौन-सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, आपको ये नहीं पता कि कौन-सा आपके लिए सही होगा, आपको ये भी नहीं पता कि कौन-सा कोर्स आप चूज़ करेंगे, उसके बिहाफ़ पे आपको इन फ्यूचर कंप्लीट करने के बाद कौन-सी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। सो हियर आई एम गोना हेल्प यू इन दैट। So let's begin. First, the top three things. Do you know? So just wait a second. Huh? Tell me, do you think वो बच्चे जो एकेडमिक्स में हमेशा टॉप करते हैं, वही सक्सेसफुल होंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, अगर मेरा पर्सपेक्टिव आप पूछे, तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। एकेडमिक्स इस टाइम पे, इस जनरेशन में मैटर बिल्कुल नहीं करता। अगर आप 70%, 60% वाले बच्चे भी हैं, तब भी आप सक्सेसफुल हो पाएँगे। जस्ट आपको एक करेक्ट डिसीजन लेना होगा, एक करेक्ट फील्ड चूज़ करना होगा जो आपके लिए सही है, एंड दैट्स इट। So, the top three things a student should do in 2026 are, which will be, are high value skills that can help in career growth, freelancing. If you want to do business, if you want to do freelancing, if you want to do a startup, if you want to join some, if you want to do some job in future in big companies like KPMG, PwC, right? Or Aditya Birla Group like companies, HCL Tech. Okay. So these top three courses will help you if you wanna go to Google, if you wanna go to Microsoft, if you wanna work with OpenAI, if you wanna work with some AI automation company, this will work for you. This will work in every area, not just AI, not just computing area, not just IT sector. It will work everywhere. So let's begin with the top three things. First, AI prompt engineering. So mostly why it matters is AI become a part of every industry, be it business, be it medical industry, be it law, be it design, be it education, be it engineering, and lot more, right? Be it everything, AI has been creating an impact in every field. So students who know how to use AI will effectively will work faster and smarter than others. So, in this, what you have to learn is that very simple as that, like prompt engineering, AI automation, basics of AI for like content writing, resource using AI tools, automation basics, ethical use of AI. And the best thing I will personally suggest is if you are a fresher in college, you should do a cyber security course because not because I am telling this, because the data is telling, right? In the past 3 years, the cyber security courses, those who are doing cyber security courses have been getting more job opportunities in future. In the future, they are getting in big companies like Google, Microsoft, OpenAI. Okay, so if you wanna also learn, if you wanna be a ethical hacker, right? If you wanna work for in the country, right? If you wanna save people from the crimes, it's a very much good course for you. Okay, so
why you should learn prompt engineering, why you should learn automation basics, why you should learn AI. See, if you see students, if you see yourselves only, you must have done work with like ChatGPT, Gemini. You must have used it, right? In your school work for doing homeworks and everything. And not only you, I have also done that, right? मैंने भी ये यूज़ करा है, आपने भी यूज़ करा है और ये आप जस्ट एक फैक्ट है, राइट? हर कोई यूज़ करता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई यूज़ करता है। किसी को ट्रैवल के लिए जाना है तो बेस्ट 5 थिंग्स या टॉप 3 थिंग्स कि इस महीने में कौन सी अच्छी-अच्छी जगह हैं, वो चैटजीपीटी में लिखेगा, प्रॉम्प्ट करेगा और चैटजीपीटी उसे बता देगा कि ये मनाली जा सकते हैं, आप भी ऋषिकेश जा सकते हैं, आप पहाड़ों में जा सकते हैं, कहीं भी बीचेस में जा सकते हैं गर्मियों के टाइम पर, राइट? ठंड के टाइम पे आप पहाड़ों में जा सकते हैं, दार्जिलिंग जा सकते हैं इंडिया में, या बाहर जाना हो तो इटली-विटली, कुछ भी हो, राइट? सो आप हर किसी चीज़ के लिए, हर कोई छोटी-मोटी चीज़ के लिए आप एआई का सहारा लेते हैं, राइट? So the let's come to the main topic. That's why you should learn AI basics, ethical use of AI for content research or AI tools. Why you should learn AI tools? Why you should learn prompt engineering? Is that it will help you to become more employable, more productive, and better at learning quickly. आप जल्दी सीख पाएँगे बिकॉज़ एआई एक ऐसी चीज़ है कि आपको इसके लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानना चाहते हैं, आप एआई का यूज़ करके जान सकते हैं। हर कोई छोटी-मोटी चीज़ आजकल हर किसी के पास, हर एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके पास लैपटॉप, मोबाइल, बड़े-बड़े आईफ़ोन सबके पास रहते हैं एंड दैट्स अ फैक्ट। ये कोई मना नहीं करेगा, राइट? आई होप आपके पास भी होगा। सॉरी अगर किसी के पास नहीं है तो। तो अगर आपको कोडिंग फील्ड में जाना है, राइट? जैसे ये निवेदिया, गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट ये जो कहते हैं कि एआई ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर नहीं करते। बट अगर आप डेटा में देखेंगे ना, इन करंट पास्ट 2 इयर्स में भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, निवेदिया is hiring so much of software engineers, mostly from India, to work for their company. So, if you want to do work with them, it's best course for you to do. Second, communication and personal branding. Why it matters? Because the world rewards the people who can present their ideas, build influence, network, and most importantly, communicate better. Obviously, even brilliant students struggle if they cannot communicate effectively. And you may have also you also have struggled, if I am not wrong, in schools when teachers used to speak in English, we were not able to. And personally, I was being in the English medium school, I was not able to speak English properly. And because of that, no one wanna talk with me. कोई बच्चा कोई बच्चा बात नहीं करता था। सब टीचर्स कहते रहे ये बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है। इंग्लिश में इतने कम मार्क्स थे बिलीव मी। बट टुडे आज जब मैं जब 3rd क्लास में असल में मैं एवरग्रीन में पढ़ता था, तो मैं दिल्ली में हूँ और बेसिकली मैं 3rd क्लास से मुझे उससे पहले मैं हमेशा 3rd तक टॉपर था। उसके बाद मेरा डाउनफॉल हुआ, उसके बाद मैं फिर धीरे-धीरे रिकवर करना स्टार्ट हुआ तो टाइम लग गया बहुत। बट 12th तक मैंने अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर ली कि इंग्लिश में मेरे 100 में से कम 80-90 आ जाते हैं। सो आई एम नॉट टेलिंग कि मैं एक टॉपर बच्चा हूँ। मैं कभी टॉपर था ही नहीं और मैं अभी भी टॉपर नहीं हूँ। मैं हमेशा से एवरेज बच्चा हूँ और मैं हमेशा कुछ नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, पता है? और मुझे लगता है कि कोई कभी परफेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि सीखने के लिए दुनिया में इतना कुछ है ना कि आप सीखते रहोगे, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, बस सीखना खत्म नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, हर दिन, हर घंटे कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप। तो
अगर आपको कुछ नया सीखना है ना, तो आपको उसके लिए कम्युनिकेशन जो है आपका, वो अच्छा होना चाहिए। लोगों को इन्फ्लुएंस, बातों में उनके साथ बात करना, उनके साथ कांटेक्ट करना, नेटवर्क बनाना, वो अगर आपको आ गया ना, तो जस्ट बिलीव मी, आपके लिए इतने सारे डोर्स ओपन है, आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। यू विल गेट हायर इन बिग बिग कंपनीज लाइक KPMG, सॉफ्टवेयर कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज। आपको यहाँ तक कि अगर आपके पास लैंग्वेज की अच्छी स्किल्स है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब तक मिल सकती है। तो इफ यू वांट टू डू जॉब, फर्स्टली यू हैव टू, अगर आपको कभी इन फ्यूचर जॉब भी करना है, तो मेन थिंग है आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, राइट? और इंटरव्यू देने के लिए आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए। अगर आप कम्युनि आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, एंड दैट्स अ फैक्ट। सो टुडे मैं आपको यही बताने आया हूँ कि जस्ट वर्क ऑन योर communication skills. Personal branding means personal growth. And if you want to do startups, और आपको अगर आपने सोच रखा है कि आप बड़े होकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कोई स्टार्टअप, या फिर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट? और ये आपको भी पता है, और मुझे भी पता है। ओके, सो इसमें आपको सीखना क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। आप जाइए, किसी किसी से जरूरत नहीं, बाहर किसी के साथ आपको फोन करके बुलाने की जरूरत नहीं, आप दोस्तों के साथ ही बातें करिए, इंग्लिश में बात करिए, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन चुका है। बेसिकली इंटरव्यू में भी ये सब यूज होता है। आप कॉर्पोरेट जब फील्ड में जाएंगे, तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आप ट्राई करिए इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की। आप वीडियोस देखिए, देयर आर मेनी वीडियोस। आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए। अगर न्यूज़पेपर नहीं पसंद, तो आर्टिकल्स पढ़िए। मैं आपको बिजनेस आर्टिकल टॉप 3 बोलूँगा। आप फोर्ब्स पढ़ सकते हैं, राइट? आप, क्योंकि फोर्ब्स में बहुत बिजनेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस के लोग आते हैं, तो वो आपके लिए सही है। और मैं सजेस्ट करूँगा इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है, और एक हिंदू, हिंदू और बिजनेस टुडे, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, आप इन्हें रीड करिए। यू, बिकॉज दीज आर द मेन न्यूज़पेपर्स जो काम की बातें लिखते हैं। आप देखेंगे तो बाकी सब कुछ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब जस्ट पॉलिटिक्स में भरा हुआ है ये सब। सो अगर आपको कुछ जेन्युइनली सीखना है, तो आप हिंदू से सीख सकते हैं, दृष्टि से सीख सकते हैं, आप इकोनॉमिक टाइम से सीख सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक से फील्ड में जाना चाहते हैं, वो तो और हेल्पफुल है आपके लिए। और आपके लिए फोर्ब्स, हाँ, अगर आप बिजनेस के फील्ड में जाना है, तो फोर्ब्स इज द बेस्ट थिंग यू शुड रीड। सो why it helpful for you? Because it makes you more confident, it makes you more visible, it makes you a better leader, and open the door of more and more opportunities. You will have more and more opportunities. And not only this, for this, big companies will be ready to hire you just because of your communication skills are good. It will not look if you are 60-70% in academics, and if you have good communication skills, then big companies, top companies are going to hire you and give you and pay you high salaries for that. Third, digital skills course. Why it matters a digital skills course? Because it gives student a career flexibility. It gives startup opportunities, career flexibilities, passive income. आप जैसे, अगर आप अभी कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी, मतलब अगर आप 12th पास है, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड थर्ड किसी भी ईयर में हो, और अगर आपको अभी से पैसे कमाने हैं, अगर आप कॉलेज या फिर 12वीं क्लास में ही है, तो आपको अगर पैसे कमाने हैं, तो बेस्ट थिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा,
Start doing courses, डिजिटल कोर्सेज लाइक गूगल प्रोवाइड करता है। गूगल का बेस्ट कोर्स बोलूँगा तो मैं मार्केटिंग जो है, गूगल मार्केटिंग कोर्स बेस्ट प्रोवाइड करता है। आप मेटा से उसके एडवर्टाइजिंग सीख सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हैं। मेटा कोर्स प्रोवाइड करता है, एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है, गूगल भी प्रोवाइड करता है। और इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल, वो सर्टिफिकेट इतना वैल्यूएबल है कि आपको, अगर आपने कोई बैचलर्स डिग्री भी नहीं है, आपके पास वो कोर्स है ना, तो तब भी आपको एक जॉब मिल जाएगी अच्छी खासी। सो इसके अलावा अगर वो जॉब नहीं करना, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो तब भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इट गिव्स अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, हाउ टू रन योर बिजनेस, हाउ टू start something, how to build your product, how to package your product, how to advertise your product। आपको सब कुछ सिखाएगा। अगर आपको गूगल का मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं तो। अगर आपको सॉफ्टवेयर में कुछ सीखना है, तो मेन मैं बताऊंगा कि आपको पैसे देकर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, राइट? अगर आप सीखना चाहते हैं दैट्स गुड, आप डिप्लोमा कीजिए, 6-7 महीने का होता है, डिप्लोमा कीजिए। बड़े बड़े आईआईटी देते हैं, आईआईटी खड़गपुर जैसा ज़्यादा देता है, ठीक है। डिप्लोमा कीजिए, बड़े बड़े कॉलेजेस देते हैं, प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप डिप्लोमा करिए इन सम कोडिंग्स और कंप्यूटर कोर्सेज। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज in future, from now, the next 3 to 4 years, it will just be the AI generation is upgrading itself, and so many jobs are going to be off. So इफ़ यू वांट बी ग्राफिक डिज़ाइनर, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो बेस्ट ऑप्शन मैं तो बोलूँगा, अगर आपको डिज़ाइनर भी बनना है, आपको आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आप पर्सनली कुछ प्रोवाइड करूँ, तो अगर आप कुछ मैं चाहता हूँ जेन्युइनली, अभी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, इन सब के अभी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप ये भी सीख लेते हैं, अगर आपको आता भी है, तो आप बिल्कुल, अगर आप अभी कॉलेज में कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये स्किल है तो। वीडियो एडिटिंग, इफ़ यू आर ग्राफिक डिज़ाइनर, इफ़ यू आर डेटा एंड डिजिटल एनालिसिस, अगर आपके पास ये स्किल्स भी है, अगर आपके पास इसके डिप्लोमा या कुछ सर्टिफिकेट्स भी हैं, अब कॉलेज में बैठकर, कॉलेज करते वक्त ही आप कमा सकते हैं पैसे। So it makes you independent. It makes you industry related. Okay, it helps to makes you, it helps to make projects. It helps to makes you everything in every field। आपको पता है AI हर जगह काम होता है, right? So the most powerful combination, if I tell, is that you should learn AI skills, communication skills, and digital skills, because these combinations makes a student future ready, highly adaptable, opportunity rich, because they can think, build, communicate, use technology effectively, all at the same time. Thank you for listening to the last, and I hope you will come again tomorrow to listen to the podcast. And I hope this episode is helpful for you and the students who are listening to me. And thank you.